So, welcome. This is our next lecture on the chapter 19, excretory product and their elimination. Now, let us take a recap. In earlier lectures, we already talked about what are the various excretory products. So, the metabolic waste which are produced after metabolic activity or due to excess ingestion are excretory product. The excretory product may be carbon dioxide, water, excess ions, it is bilirubin and biliverdin, that is the waste of a liver, and the various nitrogenous waste, and nitrogenous waste are produced as a result of catabolism of protein, say ammonia, urea, uric acid. Then we have also seen the various excretory organ. In the animal kingdom. So you could recall that protonephridia or flame cell in Platyhelminthes are excretory organ. In annelids, they are the nephridia. In arthropods, they are Malpighian tubule. In case of crustaceans like crab, prawn, they are green gland or antennal gland, and in vertebrate, they are kidney. Next was modes of excretion. So, nitrogenous waste is eliminated either as ammonia, urea, uric acid or guanine depending upon availability of water and habitat. Especially we have given emphasis on example. They are asked in NEET exam. The next title was Human Excretory System. A pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. These organs work in coordination to form a human excretory system. Then we talked about histology of kidney. We have said human kidney is divided in outer peripheral cortex and central medulla. Each kidney has over 1 million nephron, and the Malpighian bodies and convoluted part of all nephron are present in renal cortex, and medulla contain the loop of Henle and collecting duct. Then we have studied structure of nephron. So each nephron has anterior Malpighian body consisting of glomerulus and Bowman's capsule and posterior renal tubule comprising PCT, loop of Henle, DCT. And we have seen that many nephron open in common collecting duct. Now in today's lecture, I will talk for mechanism of urine formation. So you know urine formation takes place in each and every nephron, and it takes 3 steps: filtration of blood, absorption of useful substances from filtrate, and renal secretion of unwanted and excess substances. So that we will talk now in the mechanism of urine formation. We will also talk, if the time permit, about mechanism of concentrating the urine, that is counter current
मेकॅनिझम. म्हणजे सर आपण याआधी हे सर्व टायटल पूर्ण केले आहेत आणि या लेक्चरमध्ये आपण बोलणार आहे मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशनबद्दल आणि इफ टाइम परमिट काउंटर करंट मेकॅनिझम. सो दिस इज गोइंग टू बी अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लेक्चर. प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. So, urine is formed in 3 steps. First, ultrafiltration. Now see, a little introduction has been provided to you in earlier lectures as well. This is we are going to complete in detail now. तो सर यूरिन फॉर्मेशन हर नेफ्रॉन में होता है और उसके लिए पहली स्टेप होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ फर्स्ट स्टेप in urine formation. It occurs in glomerulus and visceral layer of Bowman's capsule. That is, glomerulus आणि visceral layer of Bowman's capsule means Malpighian body. Ultrafiltration means filtration of blood under pressure at microscopic level to separate unwanted substances. तो कोणाचं फिल्ट्रेशन होणार आहे? ब्लडचं. आणि ग्लोमेरुलर कॅपिलरीमधलं जे प्रेशर आहे आणि कॅपिलरीजवर जे छिद्र आहे तर त्याच्यामुळं हे फिल्ट्रेशन होईल आणि वेगळे व्हायला पाहिजे अनवांटेड सब्सटेंसेस. तो मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माने ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा ग्लोमेरुलस में, प्रेशर की वजह से होगा और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को छेद है और विसेरल लेयर जो है वहाँ फिल्ट्रेशन स्लिट्स है तो ये फिल्टर का काम करते और फिर खून में से सेपरेट होने चाहिए अनवांटेड सब्सटेंसेस. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप आहे यूरिन फॉर्मेशनची. कुठे होणार? ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कॅपिलरीज आणि विसरल लेयर. काय होतं अल्ट्राफिल्ट्रेशनमध्ये? सर ब्लडचं फिल्ट्रेशन होतं अनवॉन्टेड सब्सटन्सेस सेपरेट करायला. त्याला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का म्हणतात? कारण ते मायक्रोस्कोपिक लेवलवर आहे आणि तिथं महत्त्वाचं असतं प्रेशर. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सिलेक्टिव्ह process. It's purely physical process. That is non-biological. It is a passive process. तो सर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ही नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है. मतलब उसे अच्छा बुरा नहीं समझता. जो सब्सटेंसेस ब्लड में ऐसे हैं जिनकी साइज ग्लोमेरुलर कैपिलरी होल से छोटी है, वो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल वो चले जाएंगे. ये फिजिकल प्रोसेस है, नो बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट्स प्योरली फिजिकल. फिल्ट्रेशन ही फिजिकल प्रोसेस असतं. पॅसिव है मतलब इट इज़ विदाउट वेस्टिंग एनर्जी. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता? तो सुनो. इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज देर इज a glomerular hydrostatic pressure which is acting on the capillary wall. It is opposed by blood colloidal osmotic pressure of albumin protein present in blood
and capsular hydrostatic pressure that is of a filtrate already present in the lumen of Bowman's capsule. म्हणजे सर अल्ट्राफिल्ट्रेशनसाठी प्रेशर कुठून येईल? तो हमने कहा efferent arteriole has a lesser diameter, afferent arteriole has a wider diameter, and hence more blood enter the glomerulus than leaves. येण्याचा रस्ता मोठा आहे, निघण्याचा रस्ता छोटा आहे आणि म्हणून या कॅपिलरीमध्ये जास्त ब्लड येतं, पण तेवढं निघू नाही शकत. तो इससे प्रेशर बढ़ेगा. दैट इज अ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 70 mm ऑफ Hg. अब ये जो एक्टिंग प्रेशर है इसको अपोजिंग प्रेशर भी रहता. ते कोणाचं असतं? ब्लडमध्ये जे अल्बुमिन प्रोटीन असतात त्यांचं, जे असते रफली 32 mm ऑफ Hg. आणि कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहता? तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे जो पहले से फिल्ट्रेट रहेगा लुमेन में, तो वो भी अपोजिट प्रेशर डालेगा इस प्रेशर पे. सो दैट इज 20 mm ऑफ Hg. So 70 mm is opposed by 52 mm and hence effective filtration pressure responsible for ultrafiltration is 18 mm of Hg. तो एक्टिंग प्रेशर 18 से ज़्यादा है और इसीलिए सब्सटेंसेस गेट फिल्टर्ड थ्रू द होल्स. तो सर यहाँ फिल्टर का काम कौन करेगा? बघा, कैपिलरी जो है, समझो ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और ये कैपिलरी की जो सेल्स रहती एंडोथेलियल सेल्स, तो ही एक कॅपिलरी आहे. ह्या एंडोथेलियल सेल्स आहे. ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी और ये है पोडोसाइट्स. तो टुगेदर दे एक्ट एज अ फिल्टर. अब क्या चीज़ फिल्टर होके जाएगी अंदर? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर कौन आया? ब्लड. म्हणजे ग्लोमेरुलर कॅपिलरी नेटवर्कमध्ये कोण येतं? ब्लड येतं. मग ब्लडमध्ये RBC आहे, WBC आहे, प्लेटलेट आहे, प्लाज्मा आहे. तो RBC, WBC, platelet cannot get filtered because of its size. From plasma, protein and certain fat globules, they do not get filtered. म्हणजे रक्तामधून RBC बाहेर जात नाही, छिद्रापेक्षा मोठी आहे. WBC नहीं जाती, प्लेटलेट नहीं जाती, प्लाज्मा में से प्रोटीन फैट नहीं जाते, पर बाकी प्लाज्मा फिल्टर होके चले जाती. तो सर यहाँ पर कौन आया? प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन. म्हणून या फिल्टरला म्हणतात, या फिल्ट्रेटला म्हणतात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा या प्राइमरी यूरिन. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द प्लाज्मा गेट फिल्टर्ड. तो सर यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया
जिसे आपने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, डीप्रोटीनाइज प्लाझ्मा या प्रायमरी यूरिन. तो आपला फायदा काय झाला? तो देखो, इस प्लाज्मा में जो भी थे अनवांटेड सब्सटेंसेस, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो साफ हो गए. यू मीन whatever the nitrogenous waste or unwanted substances or excess substances were there in a plasma, they have got filtered. नुकसान क्या हुआ? सर, ये प्रोसेस तो नॉन सिलेक्टिव है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है. तर त्या नाइट्रोजिनस वेस्ट सोबत गेलं. प्लाज्मा में तो रहते हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स. सो न्यूट्रिएंटही गेले, वॉटरही गेलं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए. पर ये प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव है, वो जिम्मेदार नहीं है. तो सर, अब ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो लेट अस रिवाइज. सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. कुठे होते? इन मालपिगियन बॉडी, पर्टिक्युलरली इन ग्लोमेरुलर कॅपिलरी नेटवर्क अँड विसरल लेयर ऑफ बाउमन्स कॅप्सूल. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज filtration of blood to separate unwanted substances under pressure at microscopic level. The process is non-selective, non-biological, purely physical. It is passive, without waste of energy. कैसे होता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? तो सर, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज receive the blood through afferent arteriole and the blood leaves the glomerulus through efferent arteriole. And because of difference in diameter of afferent and efferent arteriole, the blood in this network is under high pressure called glomerular hydrostatic pressure, which is opposed by opposing pressure, blood colloidal osmotic pressure and capsular hydrostatic pressure. So effective filtration pressure is glomerular hydrostatic pressure 70 mm minus blood colloidal osmotic pressure 32, capsular hydrostatic pressure 20, that is 52 mm. So the effective filtration pressure is 18 mm. Now what is get out of the capillary? कैपिलरी मधनं काय निघून जाते? और कैपिलरी से जो भी चीज़ें निकल जाती वो कहाँ जमा होगी? इन द लुमेन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल. तो सर, कैपिलरी में से बाहर जाएगा प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन. And hence the filtrate which is collected in the lumen of Bowman's capsule is called deproteinized plasma, म्हणजे आपली प्राइमरी यूरिन किंवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब हमें ये देखना है कि ये डीप्रोटीनाइज प्लाज्मा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर प्राइमरी यूरिन, उसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है? तो देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 125 ml पर मिनट. तो सर, 125 ml इन 1 minute, सो मल्टीप्लाइड बाय 60 minute, तो 7500 ml पर आवर, that is 7.5 लीटर पर आवर. एका घंट्याला 7.5 लीटर इथं फिल्ट्रेट येतं. तो सर, ऐसा 24 घंटे में 180 लीटर पर डे. म्हणजे सर, तुम्ही असं म्हणता की 2 किडनीमध्ये, सगळ्या नेफ्रॉनमध्ये
एका दिवसाला 180 लिटर फिल्ट्रेट बनतं जी। आप कह रहे हैं कि 2 किडनी के 20 लाख नेफ्रॉन में एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता। हाँ, पर हम तो उसमें से सिर्फ 1.8 लीटर फेंकते एज अ यूरिन, मतलब 1% ही हम लोग फेंक देते शरीर के बाहर। तो 99% सब्सटेंसेस उसमें क्या है, यूजफुल, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, नॉन सिलेक्टिव। तो यूजफुल सब्सटेंसेस का एब्सॉर्प्शन होता, तो 99% सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब्ड। यस। अब ये सोचने वाली बात है कि इस कप में कितना आया था ब्लड, जिसमें से 125 ml फिल्ट्रेट है। आता प्रश्न काय आहे की यहाँ पे फिल्ट्रेट अगर 125 ml है तो फिर यहाँ पर कितना ब्लड आया था इन 1 मिनट। तो सर यहाँ आया था 1200 ml पर मिनट। तो सर 1200 ml मतलब 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो आपलं हृदय एका मिनिटाला 5 लिटर ब्लड फेकते, त्याच्यातलं 1200 ml आलं होतं। मतलब हमारा हृदय 5 लीटर ब्लड फेंकता है 1 मिनट में, उसमें से 1200 किडनी में आता, मतलब 20% आता। और उस 1200 ml में से यहाँ फिल्ट्रेट आता 125 ml। तो सर ये लॉजिक अगर लगाए तो एका मिनिटात 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, तो 4 मिनट में 5 लिटर ब्लड फिल्टर हो जाता। म्हणजे आपल्या शरीरात किती रक्त आहे, 5 लिटर। जर एका मिनिटात 1200 ml फिल्टर होते, साफ होते, तो 5 लिटरला 4च मिनटं लागतील। मतलब केवल 4 मिनट में हमारा पूरा ब्लड होता फिल्टर, केवल 4 मिनट में। और ऐसा बेचारी किडनी दिन भर करती है। मतलब ये हुआ कि हमारा 5 लिटर ब्लड 4 मिनट में साफ होता, तो 1 घंटे में, सो डिवाइडेड बाय 60 मिनट, तो 1 घंटे में 15 टाइम्स फिल्टर होता। तो 24 घंटे में 360 टाइम्स फिल्टर होता। म्हणजे सर 5 लिटर ब्लड साफ करायला किती वेळ लागतो, 4 मिनिट। म्हणजे 60 मिनिटात किती वेळा साफ होईल, 15 वेळा। आणि 24 तासात 360 वेळा। तो खून का हर कतरा 360 बार फिल्टर होता है किडनी में से। इट्स एक्सलेंट फिल्टर। तो सर मग किती ब्लड फिल्टर होत असेल? अगर आप कैलकुलेट करना चाहते, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ द ब्लड गेट फिल्टर्ड इन अ होल डे, सो you can imagine that 5 liter in 4 minutes get filtered. So 5 लिटर 4 मिनिटात फिल्टर होते, म्हणजे एका घंट्याला हेच ब्लड 15 वेळा होते। तो सर 15 बार गुनीला 5 लिटर, तो 75 लिटर। अब ऐसा 24 आवर्स, तो ये 24 फाइजा 120, 24 सेवनजा,
रफली 1500 लीटर ब्लड फिल्टर होता है इन 1 डे. अब खैर इसकी ज़रूरत नहीं है आपको. तो तुम्हाला महत्त्वाचं काय होतं की होल ब्लड प्रेझेंट इन आर बॉडी टेक्स ओनली 4 मिनट टू गेट फिल्टर्ड. तो आता पहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झालं. ये हमारा 7वां पॉइंट यहाँ था. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट 180 लीटर पर डे. अब इस फिल्ट्रेट में क्या है 99% सब्सटेंसेस यूजफुल एंड ओनली 1% हार्मफुल. So how could you say that 99% substances are useful? Because the filtrate formed is 180 liter. Filtrate formed is 180 liter per day. On the contrary, we eliminate only 1.8 liter per day as a urine. So 99% is absorbed. So that is a second step of urine formation called selective reabsorption. So let us start second step. Now see, say diagrammatically, this is a Bowman's cup. This is afferent and efferent vessel. And this is a capillary network. And this is ultrafiltration. This is a filtrate that is collected here. अब ये फिल्ट्रेट जो है वो जाएगा इन द पीसीटी, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप, डीसीटी एंड अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. तो आता हे जे फिल्ट्रेट आहे ना हे पीसीटी मध्ये जाईल. लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. तो हमको यूजफुल सब्सटेंसेस जगह जगह से करने हैं एब्सॉर्ब. वो हम लोग अभी देखना चाहते. सो सेकेंड स्टेप, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. पहिला पॉइंट, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन इज सेकंड स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कहाँ होता? इन द रीनल ट्यूब्यूल थ्रूआउट इट्स लेंथ. That is in PCT, in loop of Henle, in DCT, in collecting duct. So it's a second step in urine formation. It occurs throughout the length of renal tubule. तीसरा point, what is selective reabsorption? Absorption of useful substances. कोणते substances? Useful. From कहाँ से निकालोगे? Renal tubule. And putting them back in circulation. सो अब देखो, जैसे ये पीसीटी है तो आपने न्यूट्रिएंट्स निकाले, वाटर, सॉल्ट्स,
तो ये चीज़ें हम लोग रीनल ट्यूब्यूल से बाहर निकाल रहे। सो एब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल रखोगे कहाँ? तो सर इस रीनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू में है ब्लड कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क, वापस उसको ब्लड में रख देंगे। जो गलती से बाहर गए वो वापस आ गए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की गलती से जो अच्छी अच्छी चीज़ें चले गई थी कैपिलरी के बाहर वो वापस आ गई। तो absorption of useful substances from renal tubule and putting them back in circulation is selective reabsorption. Next point, selective reabsorption is a second step in urine formation. It occurs in throughout the length of renal tubule, म्हणजे PCT, loop of Henle, DCT, collecting duct. It is absorption of useful substances from renal tubule and putting them back in circulation. चौथा point, selective reabsorption is of two types, active and passive. It may be by diffusion or osmosis. तो सर ये एब्सॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस एक्टिव या पैसिव माने? व्हेन द सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अ पैसिव प्रोसेस. When substances move from high concentration to low concentration, it is a passive process, म्हणजे without waste of energy. But when substances move from low concentration to high against the gradient, it is active. तो उदाहरण के लिए अगर ये पहाड़ी है और आप साइकिल लेके पहाड़ी पे चढ़ रहे, तो ये अगेंस्ट द स्लोप है, तो द प्रोसेस विल बी एक्टिव. और अगर आप पहाड़ी से साइकिल लेके उतरोगे तो पैडल मारने का काम नहीं, सो इट इज अलॉन्ग द स्लोप, सो इट इज पॅसिव्ह. म्हणजे जास्तकडून कमीकडे असेल तर पॅसिव्ह, कमीकडून जास्तकडे असेल तर एक्टिव. और सोल्यूट्स का होता है डिफ्यूजन और वाटर का ऑस्मोसिस. तो वापिस एक बार, सेकंड स्टेप, सिलेक्टिव reabsorption. So it is a second step in urine formation. It occurs throughout the length of renal tubule, that is PCT, loop of Henle, DCT. Selective reabsorption is absorption of substances from renal tubule and putting them back in circulation. Selective reabsorption may be active, that is along the gradient, उताराच्या इकडे, जास्तकडून कमीकडे, या अगेन्स्ट द ग्रेडियंट माने इट मे बी ॲक्टिव्ह. आणि पॅसिव्ह मीन्स अलॉंग द ग्रेडियंट. ॲक्टिव्ह हाय टू लो, आय एम सॉरी, आय एम रिअली सॉरी. ॲक्टिव्ह मीन्स लो टू हाय, it require energy. आणि passive is without energy, high to low. It may be by diffusion or osmosis. तो सर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन जो रहता वो तो PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, कॉमन कलेक्टिंग डक्ट सब जगह होता. बट PCT अलोन
is responsible for 70 to 80% of absorption. PCT alone is responsible for 70 to 80% of absorption. एकटं PCT 70-80% रीअब्सॉर्प्शन करते, रिमेनिंग इन हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट वगैरह. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. पहले इन PCT. So PCT alone is responsible for 70 to 80% of the reabsorption. In PCT, all nutrients, that is glucose, amino acids, vitamins are absorbed, and electrolytes, water 75% absorb. तो ये है PCT. दिस इज हेनलेज लूप एंड दिस इज DCT. तो PCT में जैसे वो फिल्ट्रेट आ गया तो ऑल न्यूट्रिएंट्स 100%. न्यूट्रिएंट म्हणजे कोण? सगळं ग्लुकोज, सगळं अमिनो ॲसिड, सगळं विटॅमिन. फिर NaCl, that is electrolytes, then H2O, that is water, ये 75%. So 100% nutrients and 75% electrolyte and water is absorbed. So why PCT is responsible for maximum absorption? You know, the cells here are cuboidal with microvilli that increase the surface area. अब PCT ने अपना काम किया, बाहर निकाले सारे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट 75%, वाटर 75%, also HCO3 negative, that is bicarbonate ions. तो दिस इज एब्सॉर्प्शन इन PCT. तो आत्ता प्रैक्टिकली काय समजलो? तो सर मुझे ये ध्यान में आया कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आया था उसमें 99% सब्सटेंसेस यूज़फुल थे. थैंक गॉड उसमें से हमने वापस लिया न्यूट्रिएंट्स, बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, नहीं तो वो चले जाता था शरीर के बाहर. नाउ absorption in loop of Henle. When the filtrate comes in descending limb, DL, so remember that descending limb is permeable to water. So here is a absorption of water. It is impermeable to electrolytes. म्हणजे फिल्ट्रेटमधनं आपण काय काढलं? वॉटर काढलं. तो सर मान के चलो कि यहाँ हमने 75% वाटर एब्सॉर्ब किया और यहाँ 5% किया, तो हमने 80% वाटर कंजर्व कर लिया, वापस ले लिया, नहीं तो वो चले जाता था यूरिन के साथ. नाउ द फिल्ट्रेट कम्स इन असेंडिंग लिम्ब, AL. So it is permeable to salts but impermeable to water. Remember, ascending limb मधनं फक्त सॉल्ट काढता येतात, वॉटर नाही. ये नीट क्वेश्चन है. इट इज़ परमिएबल टू सॉल्ट्स, इम्परमिएबल टू वाटर. चाह कर भी आप यहाँ से पानी नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट. तो देखो ना, आपण काय काय परत मिळवलं? सगळे न्यूट्रिएंट काढून घेतले. आपण
75% 80% इलेक्ट्रोलाइट्स काढले, 80% वॉटरही काढलं. अब ये फिल्ट्रेट गया इन DCT. तो एब्सॉर्प्शन इन DCT, बी केयरफुल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन DCT देर इज फैकल्टेटिव reabsorption, that is as per need of body. गरजेनुसार. I am asking a question. How much quantity of water you have absorbed already? तो सर आप ही ने कहा कि PCT में 75% और डिसेंडिंग लिम्ब से 5%, मतलब 80% ऑफ द वाटर इज कंजर्व्ड, एब्सॉर्ब्ड. अब इसमें कितना बचा जो जा सकता शरीर के बाहर? तो सर अभी जा सकता है 20%. तो इफ दिस 80% ऑफ वाटर इज इनफ, लेट द वाटर गो विथ यूरिन. 80% पानी काफ़ी है तो बाकी पानी को जाने दो. बट इफ इट इज स्कॉर्चिंग सन, वेरी हॉट समर सीजन, एंड इफ दिस 80% ऑफ वाटर इज नॉट इनफ, तो फिर इसे मत जाने दो. म्हणजे आता गरज आहे, कडक ऊन तापतंय, पाण्याची कमतरता आहे, तो फिर यहाँ से देर इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो दिस एब्सॉर्प्शन इज एज पर द नीड. अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ADH और वैसोप्रेसिन. सो ADH और वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. इट्स अ हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. वो क्या करता? इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट अँड मोर वॉटर इज ॲब्सॉर्ब. काय समजलं सर? तुम्ही असं म्हटलं की DCTमध्ये जे ॲब्सॉर्प्शन होते ते कंपल्सरी नाही, शरीराच्या गरजेनुसार. आपण ऑलरेडी 80% पाणी ॲब्सॉर्ब केलं, अजून पाहिजे असेल तर मग आलं पाहिजे सांगायला ADH और वैसोप्रेसिन. तो ADH वैसोप्रेसिन कब आएगा? व्हेन मोर वाटर इज नीडेड, जैसे इन समर सीजन. बट विंटर एंड रेनी सीजन है और ये 80% पानी काफ़ी है, तो ADH नहीं आएगा, तो इसकी परमिएबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो ये पानी नहीं निकलेगा, तो ऐसा पानी चले जाएगा पेशाब के साथ. अब दूसरा चीज़, दैट इज सोडियम. इन DCT absorption of sodium is facultative, that is as per the need of body. आपने पहले 75% एंड 5%, 80% वापस ले लिया. तो और अगर चाहिए तो DCT से खींच सकते, पर उसके लिए लगेगा द हार्मोन aldosterone from adrenal cortex. तो दिस इज absorption in DCT. So we have said in DCT there is a facultative reabsorption, that is as per the need of body. For absorption of water from DCT and common collecting duct, a hormone called vasopressin or ADH is required. It is the hormone of posterior pituitary. And for absorption of sodium, so a hormone aldosterone from adrenal cortex is required.
So this is absorption in PCT, loop of Henle, DCT and from collecting duct. तो सर कलेक्टिंग डक्ट से क्या चीज़ एब्सॉर्ब होती है? इट इज़ द वाटर एब्सॉर्ब, आल्सो लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया. From collecting duct there is absorption of water and little urea. Now the picture of selective reabsorption. So this is ultrafiltration and this is selective reabsorption. So from PCT, nutrients, glucose, vitamin, amino acid, NaCl, that is salts, electrolytes, Na positive, K positive, Cl negative, Ca dipositive, Mg dipositive, H2O, that is water, HCO3 negative, that is bicarbonates. यहाँ से H2O अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ADH और वेसोप्रेसिन, सोडियम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन. फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब वाटर, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब electrolytes, from collecting duct again water and urea also. तो ये झाली आपली सेकंड स्टेप, सिलेक्टिव रिएब्सॉर्प्शन. Now the last, active secretion or renal secretion. So it is third and last step in urine formation. कुठे होते renal secretion? In PCT and DCT, but also in collecting duct, but mainly PCT and DCT. What is renal secretion? अब ये बहुत important है. Renal secretion is in very easy word, movement of unwanted and excess substances from peritubular capillary to renal tubule. तो देखो ये है PCT, loop of Henle, DCT. So this is PCT, DCT, loop of Henle, collecting duct. अब ये जो इफेरेंट आर्टेरियोल है इसकी ये कैपिलरी है. तो कुछ सब्सटेंसेस जो है अनवांटेड या एक्सेस, जे पदार्थ अनवांटेड आहे, एक्सेस आहे, दे मूव फ्रॉम
पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी टू रीनल ट्यूब्यूल। मतलब कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट या अनवांटेड सब्सटेंसेस अभी भी साफ नहीं हुए इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बचे कुचे, तो उनको ज़बरदस्ती ब्लड कैपिलरी से निकाल कर डाला जाता है इन रीनल ट्यूब्यूल। और आसान बनाते, सम सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी separated during ultrafiltration. Some substances which cannot be separated, वो सेपरेट नहीं हुए, अलग नहीं हुए ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो ये गंदगी खून में बाकी थी, बची थी। तो some of the substances, unwanted substances, excess substances which were not separated during ultrafiltration are actively, at the cost of energy, actively secreted in PCT and DCT from capillary. तो मैं आपको और डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश करता। तो देखो, ये है विसरल लेयर, ये है पराइटल लेयर ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, ये ब्लड आया थ्रू अफेरेंट आर्टेरियोल और जाएगा थ्रू इफेरेंट आर्टेरियोल, यहाँ होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो खून में से जो पदार्थ सेपरेट नहीं हुए उन्होंने फिल्ट्रेशन को चाट मारी। सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच एस्केप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, त्यांनी चाट मारली अल्ट्रा फिल्ट्रेशनला। तो इस अनवांटेड सब्सटेंस को कैपिलरी में लाया जाएगा और ज़बरदस्ती डाला जाएगा इन रीनल ट्यूब्यूल। सो some substances which cannot be separated during ultrafiltration are actively separated from capillary and put back in PCT and DCT. तो ये है एक्टिव सिक्रीशन। तो सर ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हुए, या तो वो अनवांटेड है या एक्सेस है, जिनको रीनल सिक्रीशन में फेंका जाता? तो पहले रिवीजन, रीनल सिक्रीशन, it is the third and last step in urine formation. It occurs in PCT, DCT and collecting duct, but mainly in PCT and DCT. What is renal secretion? Some of the unwanted or excess substances that cannot be separated in ultrafiltration are actively transferred from peritubular capillary to renal tubule, that is renal secretion. और ऐसे substances है अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, certain drugs, pigments. So NH3, प्रोटॉन्स, पोटेशियम आयन, औषधिया और रंग, इनको फेंका जाता। तो देखो, आपकी जो डायग्राम आएगी बुक की, उसमें जब भी एरो आउटसाइड होंगे दैट इज एब्सॉर्प्शन, और जब भी एरो रीनल ट्यूब्यूल की तरफ होंगे दैट इज सिक्रीशन, जैसे कि H+, K+, NH3, पिगमेंट, लाइक दिस। तो हे झाला आता 3 स्टेप, और अब पूरी तरह से ब्लड साफ हो गया।
तो पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ने गंदगी हटा दी, सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ने उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें वापस निकाली, और कुछ बचा कुचा था वो बचा कुचा फेंक दिया गया ड्यूरिंग रीनल सिक्रीशन। अब हम लोग बुक पढ़ेंगे। नाउ द टाइटल इज यूरिन फॉर्मेशन। हमारी पेशाब कैसे बनती है? यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन to separate unwanted substances, reabsorption of useful substances, secretion, whatever is again left is removed. So 3 स्टेप अंडरलाइन करा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, reabsorption, secretion. So urine formation involve 3 main processes, glomerular filtration, reabsorption, secretion, that take place in different part of nephron. अब आप जानते, filtration in Malpighian body, absorption in renal tubule, secretion in PCT and DCT. तो पहला टाइटल आएगा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये शुरू हो गया। तो देखो, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलस, सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. On an average, 1100 to 1200 ml blood, 1100 से 1200, is filtered by kidney per minute. एका मिनिटाला 1100-1200, तो 4 मिनट में पूरा ब्लड फिल्टर होगा. सो ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of the blood get filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5, that is 20% of the blood pumped out by each ventricle of a heart in 1 minute. तो हमारा कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, उसका 1200 आता है 20%. तो ये आपको नीट में पूछा जा सकता कि डैश volume of the blood get filtered by kidney in 1 minute. So it is 1/5 of the cardiac output. So the first step in urine formation is filtration of blood, which is carried out by glomerulus. So glomerular filtration called. On an average, 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by kidneys per minute, which constitute 1/5, that is 20% of the blood pumped out by each ventricle of heart in 1 minute. Glomerular capillaries. So the glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood. ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से फिल्ट्रेशन हुआ थ्रू 3 लेयर. एक, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. 2, एपिथेलियम ऑफ बाउमन्स कैप्सूल. एंड 3, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर. तो इस पॉइंट को मैं आपको यहां निकाल के बताता. से दिस इज अ कैपिलरी. अब आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ा चढ़ाकर निकाला है.
तो ही कैपिलरी आहे ग्लोमेरुलसची. ये लाल रंग की जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी म्हणजे फ्लॅट स्क्वामस एपिथेलियम. सर्कुलेशन चैप्टर में हमने कहा था कि कैपिलरी इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम. अब देखो ये है पोडोसाइट्स present in the visceral layer of Bowman's capsule. They are directly in touch of basement membrane. So 1, 2, 3. So 1 is endothelium of capillary, 2 is basement membrane, 3 is podocytes. So the first step in urine formation is filtration of blood, which is carried out by glomerulus and is called glomerular filtration. On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of heart in 1 minute. Glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through 3 layers: endothelium of the blood vessel, epithelium of the Bowman's capsule, and basement membrane between them. The epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes and are arranged in intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pore. Blood is filtered so finely through this membrane that almost all constituent of plasma, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तो वो निकलते ही नहीं, प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्रोटीन pass into the lumen of Bowman's capsule. Therefore, it is considered as ultrafiltration, very fine. The amount of filtrate formed by kidney per minute is glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate in healthy individual is 125 ml per minute, 180 liter per day. The kidney have built-in mechanism, म्हणजे किडनी के अंदर ही ऐसा तरीका या मेकॅनिझम है, किडनीच्या आतमध्येच असं मेकॅनिझम आहे, यंत्रणा आहे फॉर रेग्युलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो मैं बाद में सेपरेटली बताऊंगा. जैसे मैंने कहा कि ये जो हो रहा है फिल्ट्रेशन, इसका रेट है 125 ml पर मिनट. तो अगर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो क्या करना है, ज़्यादा हुआ तो कैसे कम करना है, वो मैं अलग से बताऊंगा. अब यहाँ जो है वो देख लेंगे हम लोग. म्हणजे सर तुम्ही असं म्हटलं की हा रेट जर कमी झाला तर कसं असतं, तर ते मी सेपरेटली छान सांगेल. सध्या आपण वाचायचं आहे. तर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट अगर कम हुआ ना तो रेनिन नाम का एक किडनी का हार्मोन उसे बढ़ा सकता, और अगर ज़्यादा हुआ तो हार्ट का ANF नाम का हार्मोन उसे कम कर सकता. दे आर एंटागोनिस्टिक. आई विल एक्सप्लेन separately perhaps in next to next lecture.
So the kidneys have built-in mechanism for regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, JGA. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in DCT and afferent arteriole at location of their contact. Underline, a fall in glomerular filtration rate 125 ml पेक्षा जर कमी झालं तर can activate the JG cells, juxtaglomerular cells, to release renin, which can stimulate glomerular blood flow, and thereby the glomerular filtration rate is back to normal. अब यहाँ खत्म हो गया ultrafiltration. Now the second step, that is selective reabsorption. A comparison of volume of filtrate formed per day, that is 180 liter, with that of urine released 1.5 लीटर, हमने उसको 1.8 लीटर पकड़ा कंपैरिजन के लिए. तो सर फिल्ट्रेट तो बना था 180 लीटर किडनी में और हमने तो पेशाब से फेंका 1.8 लीटर, माने 1% फेंका, माने 99% हमने फेंका ही नहीं, मतलब उसका हो गया रीएब्सॉर्प्शन. सो अ कंपैरिजन of a volume of filtrate formed per day with that of urine released suggests that 99% filtrate has to be reabsorbed by renal tubule. म्हणजे त्यातलं 99% फिल्ट्रेट जे आहे ते रिॲब्सॉर्ब होते इन PCT, इन लूप ऑफ हेनले, इन DCT, इन कलेक्टिंग डक्ट. This reabsorption is a second step in urine formation. Tubular epithelial cell, माने PCT की cuboidal epithelial cell with microvilli, जैसे tubular epithelial cell in different segment of nephron perform this either by active म्हणजे at the cost of energy, म्हणजे low to high, or passive mechanism. passive माने ऑटोमॅटिक बिना एनर्जी खर्च की, हाई टू लो. सो द ट्यूबुलर epithelial cell in different segment of nephron perform either by active or passive mechanism. For example, substances like glucose, amino acid, sodium in the filtrate are absorbed actively. इसे एनर्जी खर्च करनी पड़ती. Whereas nitrogenous waste are absorbed by passive transport. तो सर नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्यों एब्सॉर्ब करेंगे? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी. रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर is also passively in initial segment of the nephron, that is PCT. During urine formation, अब ये तीसरी स्टेप हो गई चालू. renal secretion. So during urine formation, tubular cell, माने cells of PCT, DCT, secrete substances like H positive proton, K positive potassium ion and ammonia into the filtrate. Tubular secretion is also important step in urine formation as it help in maintenance of ionic and acid balance of body fluid. तो सर ये लाइन अंडरलाइन करनी चाहिए हमने. ट्यूब्युलर सिक्रीशन म्हणजे तिसरी स्टेप,
is important in urine formation because it helps in maintenance of ionic balance, क्योंकि हमने K पॉजिटिव H पॉजिटिव फेंक दिए. Acid base balance of body fluid. Now functions of tubules, म्हणजे कुठे कोणतं ॲब्सॉर्प्शन झालं. फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल इन रीएब्सॉर्प्शन. पहले पीसीटी ने क्या किया. पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम. नीट क्वेश्चन. which increase the surface area of reabsorption. Nearly all essential nutrient, important is all essential nutrient, 100%, 70 to 80% electrolytes, sodium, chloride, potassium, calcium, and 70 to 80% water are absorbed by this segment. PCT also help to maintain pH and ionic balance of body fluid by selective secretion, third step, of hydrogen, ammonia, potassium ion into filtrate and by absorption of bicarbonate ion from it. Underline. So PCT maintain कसा करते ionic balance. पीसीटी ने फेंक दिए, मतलब पीसीटी में फेंके गए H पॉजिटिव NH3 K पॉजिटिव और पीसीटी से एब्सॉर्ब हुए HCO3 निगेटिव. मतलब मुझे अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है तो दिस इज पीसीटी. तो एब्सॉर्प्शन ऑफ HCO3 निगेटिव एंड secretion of H positive, K positive and NH3 like this. Now what happens in Henle's loop? A reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrates the filtrate as it moves down. Ascending limb is impermeable to water but allow transport of electrolyte actively or passively. Therefore, as the concentrated urine pass upward, it is diluted due to passage of electrolyte to medullary interstitium. तो ये देखो कैसे हुआ. तो दिस इज पीसीटी. दिस इज डीसीटी. तो जब फिल्ट्रेट आएगा इन डिसेंडिंग लिम्ब तो आप उसमें से क्या चीज निकाल रहे सर? H2O. तो या फिल्ट्रेटमधून तुम्ही पाणी जर काढलं तर याचं फिल्ट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल? वाढेल खाली जाताना. तो समझा यहाँ पर कॉन्सन्ट्रेशन था 300, यहाँ हुआ 400, यहाँ हुआ 600, यहाँ हुआ 900. क्यों? क्योंकि सर पानी ही निकाल लिया हमने. यहाँ हुआ 1200. जब ये फिल्ट्रेट ऊपर चढेगा, जेव्हा हे फिल्ट्रेट वर चढेल तेव्हा आपण काय काढतो सर? NaCl. NaCl निकालने से क्या होगा? तो सर ये 1200 वाला 900, 600,
300 वापस डाइल्यूट होगा। वही बात को यहाँ दिखाया है। Descending limb of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrates the filtrate as it moves down, and ascending limb is permeable to water. Impermeable to water but allow transport of electrolyte actively or passively. Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, वर जाते तेव्हा it get diluted due to passage of electrolyte to medullary fluid. Now DCT. तो PCT में क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ, DCT में क्या हुआ? कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन, कभी हां कभी ना, गरजेनुसार, फैकल्टेटिव. कंडीशनल एब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट. मैंने आपको बताया सोडियम के लिए अल्डोस्टेरॉन, वाटर के लिए ADH और वैसोप्रेसिन. So conditional absorption of sodium and water take place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate. PCT मधूनही काढलं होतं. DCT is also responsible for selective secretion of H positive, K positive ion, ammonia to maintain pH and sodium potassium balance. So now the absorption from collecting duct. This long duct extends from cortex of kidney to the inner part of medulla. Large amount of water could be reabsorbed from collecting duct to produce concentrated urine. पर उसके लिए भी लगेगा ADH और वैसोप्रेसिन. कंडीशनल है वो. This segment allow passage of small amount of urea to medullary interstitium to keep up osmolarity. ये अंडरलाइन करो आप. Collecting duct allow passage of small amount of urea to medullary interstitium to keep up osmolarity. It also play a role in maintenance of pH, ionic balance of blood by selective secretion. अब देखो renal secretion PCT, DCT और collecting duct में भी होता है. H पॉजिटिव, K पॉजिटिव आयन. अब सबसे बढ़िया डायग्राम हम लोग देखेंगे. Check. In PCT, there is absorption of nutrients, electrolytes, water, potassium ion and bicarbonate. This is selective reabsorption. In DCT, there is absorption of water, but it requires ADH or vasopressin. And absorption of NaCl. तो सोडियम के लिए लगेगा अल्डोस्टेरॉन, आल्सो बायकार्बोनेट. अब तिसरी स्टेप रिनल सिक्रीशन. पहा PCT मध्ये आपण ब्लडमधून काढून टाकतो H पॉझिटिव्ह, NH3. DCT मध्ये K पॉझिटिव्ह, H पॉझिटिव्ह, NH3.
तो ये है रीनल सिक्रीशन और ये जो एरो बाहर है वो सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. आता लूप ऑफ हेनले. सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाटर निकाला जा रहा है तो फिल्ट्रेट धीरे धीरे होगा, कॉन्सेंट्रेट. ये असेंडिंग लिम्ब, तो यहां से है NaCl एब्सॉर्प्शन, तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होगा. अब कलेक्टिंग डक्ट में देखो, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. सो वो कलेक्टिंग डक्ट से निकालकर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा और इसीलिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता. तो अब हमारा अगली लेक्चर में होगा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन वाला टाइटल. अब इस लेक्चर को आप ब्रेक लेके सुनना है. अगर कंटिन्यूअस कैपेसिटी नहीं है तो थोड़ा बड़ा लेक्चर है और ये इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू.